Good morning, students. In the previous video lecture, I was discussing with you about rotational kinetic energy. So there we derived that rotational kinetic energy is half I omega square, whereas translational kinetic energy is half m v square. So if you look at both the formulae for translational and rotational kinetic energy, in linear motion we have here mass, in rotational motion we have moment of inertia. So we can say the moment of inertia plays same role in rotational motion as is played by mass in linear motion. Next is relation between tau I and alpha. Tau is torque, I is moment of inertia, and alpha is angular acceleration. When work is done by torque, it will increase rotational kinetic energy. Linear motion में when you apply force, work done by force is stored in the form of translational kinetic energy. But when work is done by torque to rotate body, then that work done is stored in the form of rotational kinetic energy. So work done by torque is equal to increase in rotational kinetic energy, और rotational kinetic energy का formula है. Now we know power is derivative of work with respect to time. This is instantaneous power. So put value of W here. So d by dt of ये, this is value of W half I omega square. Half and I they are constant, so हमने इससे बाहर ले लिया, तो we are left with derivative of omega square with respect to time. And derivative, you know this formula, d derivative of by raised power n with respect to x is n by raised power n minus 1 multiplied by dy dx. तो क्या करते हैं हम, पावर यहाँ पे 2 है, मल्टीप्लाइड बाय बेस की पावर जितनी है उसमें से एक कम कर देते हैं हम, तो 2 थी पावर 2 माइनस 1, फिर उसके बाद इस पावर को छोड़ के जो भी है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो दिस इज डी ओमेगा बाई डी टी. सो ये 2 से 2 कट गया और ये हमारे पास दिस ब्रैकेट इज एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा. वी ऑल्सो नो पावर इज इक्वल टू टाउ इंटू ओमेगा, जो कि हम पहले ड्राइव कर चुके हैं. तो इन दोनों को इक्वेट कीजिए, पावर की इक्वेशंस को. तो टाउ राइट हैंड साइड दोनों की इक्वेट करो. टाउ ओमेगा इज इक्वल टू आई ओमेगा इंटू अल्फा. ये ओमेगा कट गया एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन टाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड angular acceleration. The corresponding equation in linear motion is F is equal to ma. रोटेशनल मोशन में आए हम तो फोर्स की जगह टॉर्क आ जाएगा, मास की जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लीनियर एक्सेलरेशन की जगह पे एंगुलर एक्सेलरेशन. नाउ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन, these are 4 bodies. They are placed at the corners of a square of side 0.4 meter. So we are to calculate torque which is required to produce angular acceleration pi by 9 radian per second square. So we know torque is equal to I into alpha. Alpha is given, इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है, तो हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं. दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन. दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू द पेज. जैसे ये टेबल के ऊपर रखी हुई है चारों बॉडीज, तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स तुम एक रॉड खड़ी कर दो, इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द पेज, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन है. इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से 2 kg के डिस्टेंस इट इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ डायगोनल. इसकी डिस्टेंस भी इक्वल टू ओ बी हाफ ऑफ डायगोनल, इसकी ओ सी हाफ ऑफ डायगोनल, ओ डी हाफ ऑफ डायगोनल. सो वी कैन सभी की डिस्टेंसेस फ्रॉम
एक्सिस ऑफ रोटेशन जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायगोनल. सो डायगोनल आएगा यहाँ पे, डायगोनल यू नो इट इज डायगोनल इज √2 इंटू साइड इज 0.4 मीटर. तो हाफ ऑफ डायगोनल हमारे पास ये 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हाफ ऑफ डायगोनल आ गया. सो सभी की डिस्टेंस बराबर, तो 2 kg वाली का बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी 2 इंटू इसका स्क्वायर. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5 इंटू ओ बी का स्क्वायर. इसी तरह इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 6 इंटू ओ सी का स्क्वायर एंड इसका 3 इंटू ओ डी स्क्वायर. तो वी कैन से ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी बराबर है, तो हमने इसको कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा हमारे पास. सो ऑन कैलकुलेशन इट इज़ 1.28. So tau required to produce angular acceleration alpha is given by this. So put value of I, and alpha is given pi by 9. So it gives us 0.45 Newton meter torque. Now relation between angular momentum, moment of inertia and angular velocity. Suppose we have a body which is made of n particles, each of mass m1 m2 m3 so on, और उनकी distances जो perpendicular distances है from axis of rotation, this figure r1 r2 rn so on, these are the distances, and this body is rotating with angular velocity omega. सो सपोज इसकी वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी v1, इसकी v2 और इसकी vn. तो एंगुलर मोमेंटम वी नो, इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम इट विल बी इक्वल टू, इफ यू रिमेंबर, लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो लीनियर मोमेंटम पहले पार्टिकल का m1 p1 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज r1. सो ये आ गया फर्स्ट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम. और वी नो v इज इक्वल टू आर आई ओमेगा. सो v1 निकालना हो तो इट विल बी v1 इज r1 ओमेगा इंटू r1, ये ब्रैकेट में v1 की वैल्यू. सो moment of say angular momentum of first particle is equal to m1 r1 square omega. ये r1 और r1 square. So this is angular momentum of first particle. Similarly second particle का moment of inertia L2 will be m2 r2 square omega and so on. So सभी का ऐड कर देंगे तो हम बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा. ये फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेकेंड का nth का. बट वी नो वी आई इज इक्वल टू आर आई इंटू ओमेगा. तो यहाँ पे v1 हो जाएगा हमारा r1 ओमेगा, v2 इज r2 ओमेगा एंड vn इज rn ओमेगा. सो ये वैल्यू पुट कर दी हमने. ये r1 और r1 स्क्वायर, यहाँ पे r2 स्क्वायर, यहाँ rn स्क्वायर. Omega is common, so this bracket is moment of inertia. So L is equal to I omega. Now numerical, another numerical. A solid cylinder of mass 20 kg rotates about an axis with angular velocity 100 radian per second. Radius of cylinder is 0.25 meter. Find rotational kinetic energy and angular momentum. This you will have to remember that moment of inertia of a solid cylinder is given by half m r square, where m is mass of cylinder, r is radius. So put values, m 20 kg है, radius given है, so this is moment of inertia of a solid cylinder. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वी नो के इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. तो आई हमने निकाल रखा है, ओमेगा गिवन 100 रेडियन पर सेकेंड. सो पुट हेयर वैल्यू, दिस इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी.
एंगुलर मोमेंटम यह भी निकाला आई ओमेगा के इक्वल, पुट वैल्यू ऑफ आई एंड ओमेगा, सो इट इज 62.5 जूल. Now law of conservation of angular momentum. We know that tau is equal to dl vector by dt. जैसे this is called equation of linear motion. This is equation of linear motion where F is net external force. This is rate of change of linear momentum. इसकी क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन रोटेशनल मोशन में जो होगी, इसकी जगह फोर्स की जगह टॉर्क आ जाएगा, डी पी की जगह एंगुलर मोमेंटम. सो इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन द सिस्टम, इफ दिस टाउ इज जीरो, दिस इज नेट एक्सटर्नल टॉर्क, तो पुट कीजिए यहाँ जीरो, देन यू विल गेट डी एल वेक्टर बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो. ये साइड जीरो है तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी जीरो ही आना चाहिए, बिकॉज जीरो ही जीरो के इक्वल हो सकता है. सो इधर जीरो तब आएगा लेफ्ट हैंड साइड में इफ एल इज कांस्टेंट, बिकॉज कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है. सो इट इम्प्लाइज एल इज कांस्टेंट. दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कि इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन द सिस्टम, then angular momentum of system remains constant. So L will be constant provided no external torque acts on the system. L constant का मतलब I ओमेगा constant होगा, because L इसके बराबर होता है I ओमेगा के इक्वल. हमने ये ट्राई किया था अभी. So it implies that I omega is constant. You can say कि इसका प्रोडक्ट जो है I और ओमेगा का 35 ही रहेगा. सपोज दिस कांस्टेंट इज 35. सो इट मीन्स कि I और ओमेगा को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट ओनली 35. तो इफ इट इज 7, ये 5, तो ये प्रोडक्ट 35 ही रहना चाहिए. तो वी कैन से आई चेंज होके आई से आई डैश हो गया, ये 7 से कितना हो गया 5, और ओमेगा इसको बढ़ना चाहिए, ये 5 से 7, और प्रोडक्ट फिर से 35. सो वी कैन से 7 इंटू 5 लिखें या 5 इंटू 7 लिखें, 35 या. सो वी कैन से आई, इट इम्प्लाइज आई, दिस आई ओमेगा कॉन्स्टेंट इम्प्लाइज आई ओमेगा इज इक्वल टू आई डैश ओमेगा डैश. कि अगर आई घटेगा, आई 7 से 5 हो गया, सो ओमेगा हैज़ टू इंक्रीज, ओनली देन दिस प्रोडक्ट विल रिमेन कांस्टेंट. Now this is law of conservation of angular momentum. Now next is the relation between angular momentum and rotational kinetic energy. We know kinetic energy is given by half I omega square. You multiply and divide right hand side by I. सो ये हमने इसको डिवाइड कर दिया आई से, और एक आई यहाँ पे आई स्क्वायर बन जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, और ओमेगा ऑलरेडी स्क्वायर है तो आई ओमेगा होल स्क्वायर बन जाएगा. दिस इज इक्वल टू एल. आई ओमेगा इज इक्वल टू एल, सो ये एल स्क्वायर होगा. इट गिव्स अस एल इज इक्वल टू √2 KI, और इसकी करॉस्पोंडिंग इक्वेशन लीनियर मोशन में √2, यू कैन से दिस इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ आएगा हमारा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह मास. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. Now next one is applications of law of conservation of angular momentum. We know I ओमेगा का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है. L कांस्टेंट मीन्स L इज इक्वल टू कांस्टेंट मीन्स I ओमेगा कांस्टेंट. I ओमेगा कांस्टेंट मीन्स I ओमेगा इज इक्वल टू I डैश ओमेगा डैश is equal to constant. Meaning thereby you can say कि I omega is equal to constant means
I omega is say some constant. So omega is k upon I, or omega is inversely proportional to I. Okay, if I increases, omega will decrease and vice versa. So planet is revolving around the sun. दिस इज सन और ये प्लेनेट है. जब ये P1 पोजीशन पे था तो इसकी डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा थी यहाँ से. सो इसका मास मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस, से दिस इज एस पॉइंट सन, एस पी का स्क्वायर, इट विल गिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेनेट. ये काफ़ी ज़्यादा होगा. अगर प्लेनेट इस ऑर्बिट में ऐसे ऐसे घूम के आता है तो इसकी डिस्टेंस सन से कम होती गई, तो हेयर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, यहाँ आएगा और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटता जाएगा. जब यहाँ पहुँचेगा तो इट विल बी नियरेस्ट टू द सन, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे सबसे कम, तो एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे सबसे ज़्यादा. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अर्लियर दैट जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी सन और प्लेनेट के बीच में वो इधर लगेगी, और इसको आप ओरिजिन मान लें तो ये आर वेक्टर हो जाएगा. एंड टॉर्क इज आर एफ साइन 180, तो टॉर्क विल बी जीरो बिकॉज साइन 180 इज जीरो. So torque is zero, torque acting on planet is zero. If torque is zero, then its angular momentum will remain constant. Means I omega will remain constant. तो इधर जाएगा planet, तो I will decrease and omega will increase. And when it is nearest to the sun, here its angular velocity will be maximum. P1 is called apogee. एंड P3 जब ये फारदेस्ट क्लोजेस्ट पॉइंट पे है, इट इज़ कॉल्ड पेरिजी. P1 पे था देन इट वाज एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड P1 पॉइंट इज कॉल्ड अपोजी. सेकेंड, इमेजिन अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ रोटेटिंग टेबल, जिसके हाथ में भारी लोड है, से डम्बेल है, और ही हैज़ आउटस्ट्रेच्ड हिज हैंड्स. तो जब वो उन लोड्स को अपनी चेस्ट के पास लाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, बिकॉज डम्बेल की डिस्टेंस जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, जो कि विच कैन बी इमेजिन टू पास थ्रू हिज हेड. तो जैसे ये हमारा दिस इज अ पर्सन हु इज स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल टर्न टेबल. तो ये इसके पास वेट्स हैं, आउटस्ट्रेच कर रखे हैं इसने अपने हाथ. दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये टेबल पे खड़ा है और टेबल घूम रहा है, तो इन डिबेट्स की डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा. बट व्हेन ही फोल्ड्स हिज आर्म्स, देन व्हाट विल हैपन. जब फोल्ड करेगा तो ये एक्सिस, तो ये इसकी आर्म्स, और ये ऐसे कर दिया सपोज इसने हाथ, तो अब एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस लोड की डिस्टेंस कम और इसकी भी कम. पहले ये डिस्टेंस थी लोड की एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो अब लोड की डिस्टेंस ये एक्सिस है तो ये कम हो गई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होने के कारण एंगुलर वेलोसिटी विल इंक्रीज, और ये बहुत जल्दी घूमने लगेगा टेबल. I have posted some pictures which will demonstrate law of conservation of angular momentum, so do watch. उसमें एक यही वाली पिक्चर है, और दूसरी वैलेट डांसर की है, और तीसरी जो है टॉर्नाडो की है. Now in tornado the speed या angular velocity of inner layers is alarmingly high, क्योंकि जब ये एयर का मॉलिक्यूल यहाँ पे था तो ये पेन हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया विच इज़ परपेंडिकुलर टू द पेज. तो ये मॉलिक्यूल काफ़ी दूर है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, इसकी एंगुलर वेलोसिटी कम होगी. और जब ये इस मॉलिक्यूल की बात करें, अगर स्पायरल पाथ में घूम रहा है
तो यहाँ पे डिस्टेंस कम हो गई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा और इसकी एंगुलर वेलोसिटी और ज़्यादा होगी, और जो यहाँ पे होगा उसकी और भी ज़्यादा। So in tornado, the moment of inertia of air will go on decreasing as it moves toward the center. तो ये यहाँ से घूम रही है, toward the center जा रहे हैं molecules, तो moment of inertia घटेगा और angular velocity will increase. Ballet dancer, do see the post of ballet dancer to understand it. Ballet dancer can vary his or her speed by outstretching her arms and legs. जब हाथ को ऐसे फैला देगा बैले डांसर तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा और एंगुलर वेलोसिटी कम होगी। इफ़ ही और शी वांट्स टू इंक्रीज एंगुलर वेलोसिटी तो इन हाथों को फोल्ड कर देगा और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बैले डांसर विल इंक्रीज। Now with this it is over and 2-3 numericals. This is a T-shaped rod. ये हमारी एक T-shaped rod है, इसकी जो लंबाई है L है और ये इसकी लेंथ जो है 8:12। तो आप ये मान सकते हो कि ये जो रॉड है यूनिफॉर्म रॉड, इसका मास 2m, जो वर्टिकल पोर्शन है इसका मास 2m और ये जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है इसका मास m, बिकॉज इसकी लंबाई L है, इसकी लंबाई 2L। सो बिकॉज ये जो वर्टिकल है इट इज़ अ पार्टिकल ऑफ मास 2m और ये जो हॉरिजॉन्टल है ये पार्टिकल ऑफ मास m। तो ये अब ये रॉड को कहाँ पे इमेजिन करना है कि इसका भार 2m एट इट्स सेंटर ऑफ मास। अगर हमारी अकेली रॉड होती है वर्टिकल तो इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ बीच में होता है। सो ये यहाँ से इसकी यहाँ पे 2m मास का पार्टिकल माना जाता है एट सेंटर ऑफ मास, जितना इस रॉड का भार है। सो दिस इज अ पार्टिकल ऑफ मास 2m। बट अबाउट दिस, इसका L तो इसका मास m और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा। सो यहाँ पे हम मानते हैं कि वी हैव अ पार्टिकल हुज मास इज m। तो ये 2m मास का, ये m मास का, तो सेंटर ऑफ मास इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर होगा और ये सपोज सेंटर ऑफ मास है इस सिस्टम का। इसको ओरिजिन ले लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट होंगे आपके x1/1, इसके कोऑर्डिनेट x2/2। तो ये ओरिजिन, ये यहाँ से जो डिस्टेंस है ये बाई कोऑर्डिनेट है कितना L, और तो वी कैन से बाई 1 इज L, x1 इज इक्वल टू 0 बिकॉज दिस पॉइंट इज ऑन बाई एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट 0। इसका भी हमारा दिस इज बाई एक्सिस, तो इसका x2 होगा कोऑर्डिनेट, x2 इज 0 एंड बाई 2 विल बी इक्वल टू यहाँ से लेके यहाँ तक इट इज 2L। सो कैलकुलेट बाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम हियर। सो वी नो सेंटर ऑफ मास का बाई कोऑर्डिनेट इससे दिया जाता है, बाई 1 इज L, बाई 2 इज 2L, पुट वैल्यूज, m1 2m है और ये m है, सो इट विल गिव यू 4L/3। Another question, we have a rod of uniform thickness. It is held वर्टिकल, इसकी लंबाई 1 मीटर है, इट इज़ ए 1 मीटर रॉड। तो ये पहले ऐसे थी बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द पेज एंड इट इज़ अलाउड टू फॉल डाउन, ये यहाँ से ऐसे। सो जब ये ऐसे गिरेगी तो यू आर टू कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी पॉइंट व्हेन इट जस्ट हिट्स द ग्राउंड। तो अगर हम इसको ये नीचे वाला किनारा स्लिप नहीं करे तो ये बी पॉइंट ऐसा पाथ फॉलो करेगा। सो वी कैन से इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रोटेशनल मोशन। सो इफ इट इज एग्जाम्पल ऑफ रोटेशनल मोशन तो इट विल हैव रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो व्हेन इट वाज वर्टिकल, ये इसका सेंटर ऑफ मास, if m is mass of this rod then potential energy of rod will be mgh/2। पहले भी बता चुका हूँ, अगर ये ब्रिक्स है तो इस ब्रिक की पोटेंशियल एनर्जी कम,
इसकी थोड़ी सी ज़्यादा, इसकी हाइट ग्राउंड से ज़्यादा होगी, दिस इज़ ग्राउंड, इसकी और ज़्यादा, इसकी और ज़्यादा। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास के ऊपर हम मान लेंगे कि जितना इस रॉड का मास है उतने मास का एक पार्टिकल यहाँ पे माना जा सकता है। सो इफ m इज मास ऑफ दिस रॉड, तो आई कैन से कि एक पार्टिकल है बड़ा मास, उसका मास m है और वो यहाँ पे, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालो इस पार्टिकल की, वो इस रॉड की निकल जाएगी। सो पोटेंशियल एनर्जी व्हेन रॉड वाज वर्टिकल इज mgh/2. Rotational kinetic energy we know half I omega square. Again you will have to remember कि moment of inertia, ये वैसे it will be given. So moment of inertia of a rod is its mass or length upon 3. So this is moment of inertia of rod. We know V is equal to R omega. लेकिन यहाँ पे V will be equal to H omega. This is our axis of rotation. तो इस पॉइंट की डिस्टेंस यहाँ से h है, तो इसकी लीनियर वेलोसिटी इट विल बी h इंटू ओमेगा. सो फ्रॉम हियर ओमेगा इज v अपॉन h, तो इसकी वैल्यू पुट कीजिए, v स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर हो गया, h स्क्वायर कट जाएगा, सो वी गेट m v स्क्वायर बाई 6. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितनी यहाँ पोटेंशियल एनर्जी थी जब रॉड आपकी वर्टिकल थी, तो वो एनर्जी घटती जाएगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक बढ़ती जाएगी. तो यहाँ पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जितनी यहाँ पोटेंशियल एनर्जी थी. सो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दिस इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इट शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी. ये कैंसल, so it gives you V is equal to root 3 GH. Since rod is of 1 meter height, so H को 1 meter put कर दीजिए. Now another very important and very interesting numerical. What will be, duration of day is 24 hours. But if Earth suddenly shrinks to 1/64th of its volume, original volume, without any change in its mass, then what will be duration of day? I repeat, let us suppose radius of earth is capital R. तो ये श्रिंक कर गई, जैसे बैलून से हवा निकल गई, उसका वॉल्यूम निकल गया, कम हो गया, तो इट श्रिंक्स, और इसका वॉल्यूम जो है पहले V था, V डैश हो गया, तो V डैश वॉल्यूम इज 1/64 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम. And volume of a sphere is given by 4 pi r cube by 3. तो चलिए मान लिया बड़े वाले का रेडियस कैपिटल R था, रेडियस पहले ये R, और अब श्रिंक होके इसका वॉल्यूम काफ़ी कम हो गया, इतनी सी हो गया, इसका रेडियस R डैश. सो इसका जो वॉल्यूम है V डैश और इसका जो वॉल्यूम है V, relation given कि V dash is 1/64 of V. So volume of this it will be 4 pi r dash cube upon 3, और इसका 4 pi r cube upon 3. So it gives us r dash cube is 1/64 of r cube. 1/64 को लिखते हैं 1/4 का होल क्यूब, तो 1/4 का होल क्यूब या 1/4 क्यूब, तो ये 1/64 हो जाएगा. सो ये क्यूब को दोनों तरफ छोड़ दो, तो ये आ गया हमारा. नाउ सिंस नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन द अर्थ, सो एंगुलर मोमेंटम विल बी कांस्टेंट. L constant means I omega will be constant, and I omega constant means I omega is equal to I dash omega dash. तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया था I, श्रिंक हो गई तो I डैश हो गया. पहले एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंड आफ्टर श्रिंकिंग इट बिकम्स ओमेगा डैश. सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर, सॉलिड स्फीयर गिवन है.
it is given. Now omega we know it is theta by t. जब इलेक्ट्रॉन एक राउंड पूरा कर लेता है न्यूक्लियस के चारों तरफ तो उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई रेडियन या 360 डिग्री, और टाइम लिया उसने एक राउंड के लिए कैपिटल टी. सो दिस इज एंगुलर वेलोसिटी. सो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ, जब एक इसने रोटेशन अपनी एक्सिस के अबाउट कर लिया तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई रेडियन, and it takes 24 hours for one rotation. So this is angular velocity of earth. ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया श्रिंक होने के बाद 2m/5 और रेडियस, और ये है छोटे वाले स्फीयर की एंगुलर वेलोसिटी. उसने भी एक रेवोल्यूशन पूरा किया तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई, और सपोज नाउ इट टेक्स टी डैश टाइम, ओमेगा डैश हो गया 2 पाई अपॉन टी डैश. सो इट गिव्स अस आर स्क्वायर बाई 24 इज इक्वल टू आर डैश स्क्वायर बाई टी डैश. सो दिस इज 24 आर, तो ये टी डैश हमारा आर में आएगा. सो आर डैश इज आर बाई 4, तो पुट वैल्यू ऑफ आर डैश, ये आर डैश, ये आर स्क्वायर है, ये भी आर स्क्वायर है, कट जाएगा. सो इट विल गिव यू 1.5 आवर में एक राउंड रोटेशन पूरा हो जाएगा. नाउ लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ द चैप्टर. दिस इज अ डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड इट्स सेंटर इज ओ. डिस्क मीन्स जैसे पतीले का ढक्कन होता है, तो गोल होता है बिल्कुल, और इसमें से एक r/2 रेडियस का पीस काट दिया. फ्रॉम अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस r, अ सर्कुलर होल ऑफ रेडियस r/2 is cut out. The center of hole, this is the center of hole. कहते हैं center of hole is at a distance of r/2. होल का सेंटर r/2 डिस्टेंस पर है फ्रॉम सेंटर ऑफ ओरिजिनल डिस्क. कहते हैं लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजल्टिंग फ्लैट बॉडी. तो ये काट दिया हमने तो यहाँ पे एक होल हो गया, लेकिन पहले जब नहीं काटा था तो हमारी जो अनकट डिस्क है, ये इसका मास है अनकट डिस्क, तो वी कैन से कि जो इसका सेंटर है यहाँ पे इसका सारा मास कंसंट्रेटेड है ओ पे. फिर जब हम काट देंगे इसको तो काटने के बाद जो हमारा पीस बचेगा, अब यहाँ से मास कम हो गया तो वी नो द सेंटर ऑफ मास भारी वाली साइड पे होता है. जैसे ये हमारी रॉड है, इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में होगा. अगर मैं इस रॉड का भार अगर 5 किलो है और इस रॉड का भार भी 5 किलो है, बट इसका मास का डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ जैसे होगा टूवर्ड्स जो भारी वाला हाफ है उसकी तरफ. तो पहले सेंटर ऑफ मास यहाँ और नीचे वाली रॉड का सेंटर ऑफ मास इधर. सो जब हम इसको काट देंगे तो इसका सेंटर ऑफ मास जो पहले यहाँ था, यहाँ पे वी कैन से कि हेयर होल मास ऑफ दिस डिस्क इज कंसंट्रेटेड एंड लेट इट बी m1. तो इसके कोऑर्डिनेट जो हैं यही ओरिजिन है, x1/1 होंगे, x1 भी 0 होगा ओरिजिन पे, y1 भी 0 होगा, और ये है इसका जो काटी हुई डिस्क है उसका भार लेट इट बी m2. तो इसका सारा भार यहाँ पे कंसंट्रेटेड हुआ माना जा सकता है. सो ये है हमारा m2, और ये डिस्टेंस जो है इसके कोऑर्डिनेट m2 है यहाँ पे, इसके कोऑर्डिनेट होंगे x2 और y2 विल बी 0 बिकॉज ये हमारी x एक्सिस है. तो y2 0, यहाँ x1 0, y1 0, और यहाँ पे x2 इज इक्वल टू ये इक्वल टू r/2 एंड y2 इज 0.
और ये है जो काटी, जिस डिस्क से ये होल काट दिया उसका सेंटर ऑफ मास इधर होगा, अभी इधर शिफ्ट हो जाएगा। सो ये डिस्टेंस निकालनी है मुझे सेंटर ऑफ मास की। सो ऐसे में बेस्ट मेथड इज़ कि आप एक पार्टिकल ये इसको काट के निकाल दिया, तो इसको हम नेगेटिव मास ले लेते हैं, काटे हुए पोर्शन को। द बेस्ट मेथड इज दिस। तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर अनकट का विदाउट होल जो डिस्क थी, और मान लिया ये 1 सेंटीमीटर पीस है डिस्क का, इसका एरिया है सिग्मा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है इसका, लेंथ 1 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 1 सेंटीमीटर। सो इसका एरिया अगर सिग्मा है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया सिग्मा, तो पाई आर सेंटीमीटर स्क्वायर का मास ये हो जाएगा। सो दिस द मास ऑफ डिस्क। एक इसका एरिया पाई आर स्क्वायर और ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मास। सो दिस गिव्स मास ऑफ द ओरिजिनल डिस्क। मास ऑफ द रिमूव्ड पोर्शन का ये सपोज रेडियस है, और ये दिस इज मास m2, ये रिमूव्ड पोर्शन का, इसका रेडियस स्मॉल आर के बजाय ये क्या है हमारा r/2 का स्क्वायर इंटू दिस इज m2। सो दिस इज 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा, दिस इज m2। सो ये है मास ऑफ ओरिजिनल डिस्क। सो ओरिजिनल डिस्क का मास m1 लिया है हमने, तो इट बिकम्स 1/4 ऑफ m1 इज इक्वल टू m2। सो m2 इज रिमूव्ड पोर्शन का भार m2 है, और ये 1/4 ऑफ ओरिजिनल डिस्क का भार। सो दिस इज द सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो m1 ये x1, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे m1 ओरिजिन पे, तो इसका कोऑर्डिनेट x1 0 होगा। ये इसका मास यू विल टेक नेगेटिव रिमूव्ड पोर्शन, सो माइनस m2 इंटू इसकी x2 की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक इट इज़ r/2, और नीचे भी m2 माइनस, सो इट इज़ m1 माइनस m2 मीन्स 1/4 ऑफ m1। सो इसमें x इज इक्वल टू ये आ जाएगा, और मैंने m2 की वैल्यू m1/4 पुट कर दी, सो इट गिव्स अस r/6 माइनस, विच शोज कि ओरिजिन से इस तरफ होगा सेंटर ऑफ मास। सो दैट्स ऑल, विद दिस चैप्टर इज ओवर। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ग्रेविटेशन पढ़ेंगे हम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।